Ignited Minds Tutorials has recently released a video focusing on trigonometry. Previous year questions for IIT and CET exams. This video aims to provide students with a comprehensive understanding of the topic and help them prepare effectively for the exams. By solving previous year questions, students can familiarize themselves with the exam pattern and gain confidence in their problem-solving skills. The video covers a range of questions, including those from different difficulty levels, allowing students to gauge their proficiency in trigonometry. With clear and concise explanations, the video aims to simplify complex concepts and facilitate a deeper understanding of the subject. This resource is invaluable for students aspiring to excel in the IIT and CET exams, as it offers valuable insights and strategies for tackling trigonometry questions effectively. By engaging with the content of this video, students can develop a strong foundation in trigonometry and enhance their overall problem-solving abilities. Ignited Minds Tutorials continues to provide high-quality educational resources, empowering students to achieve their academic goals and excel in competitive exams. Okay, people, in trigonometry, we will do some more problems. A man is walking towards a vertical pillar in a straight path at a uniform speed. At a certain point A on the path, he observes the angle of elevation of the top of the pillar is 30 degrees. After walking for 10 minutes from A in the same direction at a point B, he observed the angle of elevation to be 60 degrees. Then the time taken in minutes by him from A to B to reach the pillar is. जेई मीन्स का सवाल है 2016. अब तक डायग्राम बना या नहीं बना? नहीं बना. बहुत बढ़िया. मतलब सवाल को निहार रहे हैं आप. ओके. फिर डिसाइड करेंगे अच्छा करना है या नहीं. ओके. चलिए भाई साहब, यहाँ पे एक एंगल बनता है. ये बनती है. ठीक है. A man is walking towards a vertical pillar. ये आपका भाई साहब हो गया पिलर. This is basically what? The pillar. ठीक है. This is the pillar. In a straight path at a uniform speed. At a certain point A on the path. तो यहाँ पे भाई साहब A on the path. He observes the angle of elevation of the top of the pillar to be 30 degrees. This is the angle of elevation. ठीक है. After walking for 10 minutes, so basically he has walked for a distance of, this distance has been of 10 minutes. ठीक है. So this is basically 10 minutes. Clear है? After walking for 10 minutes, he comes to a path. Let's say यहाँ पे एक point पे आता है वो, और ये है आपका B. ठीक है. The angle of elevation of the top of the pillar becomes 30 degrees. अच्छा. After walking, sorry. He observes the angle of elevation is 60 degrees. ठीक है. Then the time taken in minutes by him from B to reach the pillar. तो भाई यहाँ से let's say इस पिलर पे पहुंचने में कितना टाइम लगेगा. let's say पिलर P है OP. ठीक है. क्लियर है. आपको यहाँ पे टाइम निकालना है कि BO के डिस्टेंस को कवर करने में उसको कितना टाइम जाएगा. आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? ठीक है. ओके. सो लेट्स से हम यहाँ पे करते हैं भाई साहब tan. So in triangle OBP, tan of 60 degrees, ये कितना हो जाएगा बोलो? OP by OB है ना? ओके. अगर हमने इस डिस्टेंस को मान लिया भाई साहब लेट्स से x, ये वाला डिस्टेंस अपना हो गया लेट्स से x. ठीक है. x, और इसको अपन ने माना हाइट h. ठीक है. लेट्स से दिस हाइट इज h. ठीक है. ओके. तो इन ट्रायंगल, अभी पहले ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं अपन. ठीक है. इन ट्रायंगल, और हम मान लेते हैं कि लेट द स्पीड ऑफ द मैन बी v. ठीक है. v है. क्लियर है. v मीटर्स पर मिनट मान लो भाई साहब. v मीटर्स पर, यहाँ पे क्या दिया हुआ है मीटर मिनट में ना,
10 मिनट से ये वॉक कर रहा है, 10 मिनट से, ओके चलिए वैसे 10 मीटर्स पर मिनट इतना है लेट से, ठीक है 10, तो v मीटर्स पर मिनट है, तो भाई साहब 10 मिनट्स में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, डिस्टेंस कवर्ड 10 मिनट्स में कितना हो जाएगा, डिस्टेंस इज ऑलवेज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, है ना, स्पीड कितना है आपका v और कितना टाइम लिया आपने 10 मिनट, तो ये हो गया आपका 10v। जाइए साहब का अभ्यर्थना कीजिए भाई साहब। ठीक है, सो दिस विल बी बेसिकली दिस डिस्टेंस इज हाउ मच पीपलम, दिस डिस्टेंस इज 10v। ठीक है, क्लियर है क्लियर है क्लियर है पीपलम, है कि नहीं, ये डिस्टेंस 10v होगा। भाई हमको डिस्टेंस में लाना है, हमको टाइम से क्या करना है, हमको यहाँ पे सारे फिगर्स को डिस्टेंस में लाना है, तो ये तो अपने h मान लिया, ये x हो गया और ये ओके। नाउ लेट्स कम टू दिस ट्राइंगल पीपलम, इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल बोलो, PAOP, इन ट्राइंगल AOP tan ऑफ 30 डिग्रीज कितना हो जाएगा बोलो, OP बाई AO, OP बाई AO, है ना, tan ऑफ 30 मीन्स 1/√3, OP की वैल्यू कितनी है बोलो h, और AO की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10v प्लस x, है ना भाई साहब, 10v प्लस x, ये ड्राइंग बना रहा है नहीं, अच्छा ये कर रहा है, ओह x प्लस 10v, आर वी गेटिंग दिस पीपल, हम क्लियर है क्लियर है क्लियर है, ये हो गया लेट्स से आपका भाई साहब इक्वेशन 1। ठीक है, ओके नाउ लेट्स कम टू ट्राइंगल, इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल भाई साहब, BOP, BOP tan ऑफ 60 डिग्रीज, ये बोलो बच्चा पार्टी कितना हो जाएगा, OP बाई OB, है ना, tan ऑफ 60 मतलब कितना हो गया √3, क्या ये समझ में आ रहा है, आर वी क्लियर दिस वन, tan ऑफ 60 विल बी OP अपॉन OB, तो ये हो गया OP मतलब h बाई x। ठीक है, क्लियरम क्लियरम क्लियरम, ओके तो h की वैल्यू भाई साहब कितनी हो गई यहाँ पे, ये हो गया इक्वेशन 2, h की वैल्यू कितनी हो गई √3x, ये इक्वेशन 2 के हिसाब से भाई साहब। ठीक है, ये हो गया भाई साहब आपका इक्वेशन, ये हो गया इक्वेशन 2, इसको आप इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे कितना है बच्चा पार्टी, बच्चा पार्टी 1/√3 इज इक्वल टू h कितना है भाई साहब आपका, h की जगह पे क्या लिख सकते हो √3x, कैन बी राइट दिस। ठीक है, एक ही वेरिएबल में ला रहे हैं पूरी इक्वेशन को, तो h की जगह पे √3x लिख दिया, x प्लस 10v। ठीक है, √3 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा ये, दिस विल बी 3x, चलिए भाई साहब 3x इज इक्वल टू x प्लस 10v, चलिए भाई साहब x प्लस 10v। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो 2x इज इक्वल टू 10v, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 5v। ठीक है, मामला समझ में आ रहा है भाई साहब, x की वैल्यू हो गई 5v। ठीक है, x की वैल्यू यहाँ पे 5v। अभी तुमको यहाँ पे क्या पूछा है देखो, टाइम टेकन इन मिनट्स बाय हिम फ्रॉम B टू रीच द पिलर। ठीक है, सो टाइम टेकन यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चा पार्टी, बच्चा पार्टी जल्दी से बोलो, टाइम टेकन विल बी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, डिस्टेंस मतलब कितना है तुम्हारा OB, ठीक है, और स्पीड कितना है तुम्हारा, तुमने माना हुआ है v। ठीक है, क्लियर है, डिस्टेंस OB मतलब हो गया तुम्हारा x अपॉन v, x की वैल्यू बच्चा पार्टी कितनी है 5v अपॉन v, कैंसिल हम कितना हो गया बोलो 5 मिनट्स। ठीक है, दिस इज द वे यू विल फाइंड दिस आउट, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, हम सबको क्लियर है भाई साहब ये। ठीक है, सो दिस विल बी 5 मिनट्स, सो द ऑप्शन विल बी CM। क्लियर 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 के पीपल भाई साहब, ओके बहुत बढ़िया भाई साहब बहुत बढ़िया। चलिए भाई साहब इसको करना है, जेई मेंस का सवाल है, फटाफट फटाफट। जितनी भी आइडेंटिटीज है ना, मैं तुमको बता रहा हूं, सबसे जो काम वाली आइडेंटिटी है वो cos 2x की है, ये हर जगह यूज होती है। ठीक है, तो हर समय इसको जितना यूज कर सके, इसमें भी वही चीज यूज होगा, ध्यान से देखना इसको, cos 2x वाली आइडेंटिटी होगी। और cos 2x क्या होता है, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, तीनों भी लिख सकते हैं। ठीक है, ओके चलिए यहाँ पे है आपका 5 tan स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 2 cos
2x प्लस 9। ठीक है, क्लियर है? ओके, यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो 5। सो दिस विल बी हाउ मच 5। tan स्क्वायर x की जगह पे क्या लिख सकते हैं बोलो, sec स्क्वायर x माइनस 1 लिख सकते हैं, sec स्क्वायर x माइनस 1। ठीक है, माइनस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 2 cos 2x है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 प्लस 9। आर वी गेटिंग दिस पीपल हम? ठीक है, तो ये हो गया आपका 5 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 4 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 प्लस 9। 4 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 प्लस 9। ठीक है, तो यहां पे हो गया आपका कितना, दिस विल बी 5 बाई कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 5 माइनस 5 cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 4 cos स्क्वायर x प्लस 7, है ना? ठीक है, सो दिस विल बी हाउ मच हम पीपल हम, यहाँ पे 7 प्लस 5 इधर कितना हो गया 12। ठीक है, 5 बाई cos स्क्वायर x माइनस ये 7 और 5 को तो अपने पहले निपटा दिया भाई साहब, यहाँ पे माइनस 5 और माइनस 4, तो ये हो गया माइनस 9 cos स्क्वायर x। ठीक है, क्लियर? ना ना के very good। ठीक है, क्लियर है? ओके, तो यहां पे कितना हो गया बोलो, दिस विल बी, आप इस पूरे को मल्टीप्लाई कर दो किससे, cos स्क्वायर x से, कितना हो जाएगा बोलो 5 माइनस 9 cos रेज टू 4x इज इक्वल टू 12 cos स्क्वायर x। ठीक है, इसको पूरे को यहां पे लेके आओ, माइनस 9 cos रेज टू 4x माइनस 12 cos स्क्वायर x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इस पूरे को माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दो, सो ये हो गया तुम्हारा कितना 9 cos रेज टू 4x प्लस 12 cos स्क्वायर x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अभी यहां पे मान लो लेट cos रेज टू 2x बी t, cos स्क्वायर x को t मान लो, तो यहां पे कितना हो जाएगा बच्चों, दिस विल बी 9t स्क्वायर प्लस 12t माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अभी इसको फैक्टराइज करना है भाई साहब, 9 5 जा 45, 45 में से तुमको 12 निकालना है, 3 15 जा होता है ना, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं बोलो, 9t का स्क्वायर प्लस 15t माइनस, चलो इसको इधर कर लेते हैं भाई साहब, माइनस 3t इधर ले लेते हैं, माइनस 3t प्लस 15t माइनस 5 इज इक्वल टू 0। मेकिंग सेंस पीपल? ठीक है, तो यहां पे हो गया आपका 3t, तो ये बचा 3t माइनस 1, है कि नहीं, 3t माइनस 1 प्लस 5 इंटू 3t माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सो ये कितना हो जाएगा बोलो, दिस विल बी 3t माइनस 1 इंटू 3t प्लस 5 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पे हो गया आपका 3t माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और 3t प्लस 5 इज इक्वल टू 0। सो दैट विल गिव यू 3t इज इक्वल टू 1 और 3t इज इक्वल टू माइनस 5। ठीक है, क्लियर है? तो मतलब क्या हो जाएगा, t इज इक्वल टू 1/3 और t इज इक्वल टू माइनस 5/3। t को आपने क्या मान रखा है, cos स्क्वायर x, cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1/3 और cos स्क्वायर x इज इक्वल टू माइनस 5/3। अभी देखो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है, नेगेटिव है भाई साहब, इसका अंडर रूट कैसे निकालोगे, तो दिस इज इम्पॉसिबल वैल्यू, ये भाई साहब आपका पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो आपको यही लेके चलना पड़ेगा। तो cos स्क्वायर x की वैल्यू कितनी हो गई, 1/3। ठीक है, यहां पे क्या पूछा है देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 4x।
ठीक है। cos 4x भाई साहब कैसे निकालोगे, ठीक है, तो cos 4x देखो भाई साहब आपका यहां पे cos 2x होता है कितना, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 है कि नहीं, ठीक है। पहले इसको निपटाते हैं, देखो 2 cos स्क्वायर x मतलब कितना हो जाएगा, 2 इंटू 1/3 माइनस 1, सो दैट गिव्स यू हाउ मच, 2/3 माइनस 1 है ना, कितना हो जाएगा भाई साहब, -1/3, चलिए -1/3, ठीक है। cos 2x की वैल्यू हो गई, cos 4x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो, यहां पे अपन क्या बोल सकते हैं 2, जैसे यहां पे cos 2x इज इक्वल टू दिस, तो cos 4x विल बी cos स्क्वायर 2x माइनस 1 है कि नहीं, क्लियर है। cos 2x की वैल्यू क्या निकाली आपने, यहां पे cos 2x की वैल्यू आपने निकाली है -1/3, तो cos 4x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 cos स्क्वायर 2x माइनस 1, सो दैट विल बी हाउ मच, 2 इंटू -1/3 का स्क्वायर माइनस 1, सो ये हो गया कितना, 2 इंटू 1/9, तो 2/9 माइनस 1, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई साहब, 2/9 -7/9 तो cos 4x की वैल्यू हो गई -7/9, ठीक है। क्लियरम पीपलम, आर वी क्लियर क्लियर क्लियर, ओके ओके ओके। चलिए भाई साहब इस सवाल को करना है, लेट अ वर्टिकल टावर ए बी having its end A on the level ground, let C be the midpoint of AB and P be the point on the ground such that AP is equal to 2AB। चलिए इसको करना है फटाफट फटाफट, अरे कोई तो सवाल कर लो भाई साहब, 2017 का सवाल है। लेट अ वर्टिकल टावर ए बी, तो ये आपका वर्टिकल टावर ए बी है, दिस इज लेट्स अ वर्टिकल टावर ए बी, ठीक है, एंड सी बी द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, तो सी आपका मिड पॉइंट है ए बी का, तो ये मिड पॉइंट हो गया भाई साहब, दिस इज बेसिकली इक्वल, ठीक है, ओके। P be a point on the ground, P कोई पॉइंट है भाई साहब, सच दैट AP है जी, ए नीचे, ओके चलिए भाई साहब, ए ये वाला है ना, ओके, बी ये वाला है, चलो भाई साहब कोई दिक्कत नहीं, ए ये बी है, ओके चलिए। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, AP इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए बी, AP इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए बी, मतलब ये AP इसका ट्वाइस है, ओके। अगर मैंने देखो इसको x मान लिया तो ये भी x होगा क्योंकि मिड पॉइंट है, और ये कितना हो जाएगा बोलो, ये कितना हो गया, 2x हो गया ना भाई साहब, ठीक है। टू एक्स, तो ये वाला कितना हो जाएगा बोलो, इसका डबल, दैट इज 4x, सो दिस विल बी 4x, ठीक है, क्लियर है, आर बी क्लियर, ओके। और क्या पूछा है आपका, बीपीसी की वैल्यू कितनी है भाई साहब, बीटा, बीपीसी की वैल्यू बीटा, देन tan ऑफ बीटा कितना हो जाएगा, ओके जी, ओके चलिए भाई साहब, इसको अगर हम अल्फा मान लीजिए, ये वाला बीटा है देखो, इसको अल्फा मान लो, है ना, ठीक है, क्लियर है, ओके। मुझे बताओ tan ये अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, बोलो ना, बोलो जल्दी से बोलो, दिस विल बी ए बी अपॉन ए पी, है कि नहीं, ए बी अपॉन ए पी, तो ए बी कितना है आपका 2x बाई 4x, तो ये हो गया आपका 1/2 tan अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। tan a प्लस बी कितना होता है, tan a प्लस बी इज इक्वल टू tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, ठीक है। tan a प्लस बी इतना होता है भाई साहब आपका यहाँ पे, ओके, tan अल्फा प्लस बीटा, तो मुझे बताओ tan अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, tan अल्फा की वैल्यू इस ट्राइंगल से ले सकते हैं, इन ट्राइंगल कौन सा भाई साहब, APC, इन ट्राइंगल APC tan अल्फा की वैल्यू हो गई भाई साहब
AC बाई AP, तो ये हो जाएगा x बाई 4, ठीक है, क्लियर है, ओके, x बाई 4x, सॉरी, तो दिस विल बी 1/4, है ना, 1/4, ठीक है। तो के भाई साहब यहाँ पे हो जाएगा tan अल्फा प्लस बीटा, tan अल्फा प्लस बीटा विल बी tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। तो tan अल्फा की वैल्यू कितनी है भाई साहब, tan अल्फा की वैल्यू हो गई कितनी, 1/4 प्लस tan बीटा, ये हो गया tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा, दैट इज 1/4 इंटू tan बीटा इज इक्वल टू 1/2, ठीक है, क्लियर है, ओके। तो यहां पे कितना हो जाएगा, दिस विल बी 1/4 इंटू 1/2 प्लस 1/2 tan बीटा इज इक्वल टू, यहां पे 1 माइनस 1/4 tan बीटा, ठीक है। सो इसका मतलब क्या हो गया, ये 1/8 प्लस 1/2 tan बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 1/4 tan बीटा, ठीक है, क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल। हम इसको इधर ले लो भाई साहब, 1/2 प्लस 1/4, 1/2 प्लस 1/4 tan बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 1/8, सो दैट विल बी 8 माइनस 1, ये हो गया आपका कितना भाई साहब, 8, 2 4 जा 8, 4 प्लस 2, ये हो गया tan बीटा, ठीक है। तो 6/8 tan बीटा इज इक्वल टू 7/8, तो आपका 8 कैंसिल हो गया, यहाँ पे tan बीटा की वैल्यू क्या हो गई बस, इतना गंदा वैल्यू क्यों आ जाएगा, tan बीटा विल बी 7/6, है क्या, गड़बड़ कैसे हो गया, हाँ कौन सा बोल रहा है ये, 1/4 इंटू 1/2, क्या समझा नहीं, हाँ 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 2 होगा ना, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, तो मतलब ये तो सब गड़बड़ हो गया भाई साहब, पूरा ही गड़बड़ हो गया इधर, दैट इज अ ह्यूज मिस्टेक वाह, ठीक है, ओके, यहाँ पे हो गया 2 से 2/4 प्लस 2 tan बीटा, है ना, इज इक्वल टू 1 माइनस 1/4 tan बीटा, ओके। तो इसको इधर कर लोगे अगर, तो ये हो जाएगा भाई साहब, सॉरी 2/4 है ना, तो 1/2 हो गया, ये 2 प्लस 1/4, 2 प्लस 1/4 tan बीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 माइनस हाफ, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो गया, 2 4 जा 8, 9/4 tan बीटा इज इक्वल टू हाफ, तो tan बीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे हो गया 1/2 को 4 से मल्टीप्लाई करो, इधर 9 से, तब वो नहीं आ रहा भाई साहब, हाँ 2 2 जा 4, तो ओके चलिए 2/9 आ गया, बहुत बढ़िया भाई साहब, tan बीटा की वैल्यू हो गई 2/9, ठीक है, tan बीटा की वैल्यू हो गई भाई साहब 2/9, क्लियर हम पीपल, हम आर वी क्लियर क्लियर क्लियर, बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया, चलिए 2018 जेई मेंस, फटाफट फटाफट क्विक क्विक,
देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, cos a प्लस बी है, दूसरा क्या है cos a माइनस बी। cos a प्लस बी इंटू cos a माइनस बी कितना होता है? अरे नहीं याद आ रहा है तो फटाफट करो ना भाई साहब। cos a प्लस बी कितना होता है बोलो? cos a cos b माइनस साइन a साइन b, ठीक है। cos a माइनस b कितना हो जाएगा? cos a cos b प्लस साइन a साइन b, ठीक है। तो यहाँ पे बताइए कितना हो जाएगा? cos a प्लस b इंटू cos a माइनस b, सो दैट विल बी इक्वल टू दिस इंटू दिस, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो? दिस विल बी cos स्क्वायर a cos स्क्वायर b माइनस साइन स्क्वायर a साइन स्क्वायर b। समझम 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 पीपलम, ठीक है। अब क्या किया जाए? अगर इसको देखो अपन ये लिख सकते हैं कि नहीं, cos स्क्वायर a cos स्क्वायर b माइनस ये कितना हो जाएगा बोलो? 1 माइनस, लंबा चलेगा यार ये, एक मिनट। हाँ, तो अपन यहां पे क्या लिख सकते हैं बोलो? दिस विल बी cos पाई बाई 6 प्लस x। तो इस पूरे को क्या लिख सकते हैं बोलो? तो यहां पे हो जाएगा आपका 8 cos x, है ना। तो 8 cos x, ठीक है, cos स्क्वायर पाई बाई 6 cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर पाई बाई 6 साइन स्क्वायर x माइनस 1/2 इज इक्वल टू 1, है ना भाई साहब। ये लिख सकते हैं, है ना भाई, ठीक है। ये देखा ना हमने, cos स्क्वायर है cos स्क्वायर भी, ओके। चलिए भाई साहब इसको करते हैं। सो दिस विल बी 8 cos x cos स्क्वायर पाई बाई 6, cos पाई बाई 6 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2, 1/2 का स्क्वायर करने के तो कितना हो जाएगा? 1/4, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 1/4 cos स्क्वायर x, और ये हो गया आपका 1/4। cos पाई बाई 6 की वैल्यू कितनी होती? तुम cos 30 ना, अंडर रूट 3/2, तो अंडर रूट 3/2 का स्क्वायर हो गया 3/4। सो दिस विल बी 3/4, है ना। 3/4 cos स्क्वायर x, ठीक है। ये हो जाएगा इसका वैल्यू। साइन स्क्वायर पाई बाई 6 बच्चा पार्टी कितना हो जाएगा? साइन 30 1/4 साइन स्क्वायर x बाई 4, है ना, माइनस 1/2 इज इक्वल टू 1। चलिए भाई साहब इसको करते हैं। तो ये हो जाएगा कितना? 8 cos x, ठीक है। यहां पे भाई साहब 3 cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस cos स्क्वायर x बाई, ये हो गया 4, ये हो गया 2 इंटू 2, तो ये हो गया 2 is equal to 1. So this will be 8 cos x, this will be upon 4, यहाँ पे हो गया आपका 3 cos स्क्वायर x माइनस, ये हो जाएगा आपका प्लस cos स्क्वायर x, है ना, प्लस cos स्क्वायर x क्या भाई साहब माइनस साइन स्क्वायर एक्स, है ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो इधर -1 और -2, तो ये हो गया -3, है कि नहीं, -3। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, इज इक्वल टू 1। ओके ओके ओके। तो यहाँ पे हो गया भाई साहब आपका 8 cos x, अच्छा 8 cos x इंटू यहाँ पे हो गया आपका कितना? 4 cos स्क्वायर x माइनस 3 अपॉन 4 इज इक्वल टू 1। ठीक है, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, सो ये हो गया आपका 2 cos x और इधर कितना है बोलो? 4 cos स्क्वायर x माइनस 3 इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसको अगर हम करते हैं तो ये हो गया 2 इंटू 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x इज इक्वल टू 1। ऐसा लिख सकते हैं, बोलो भाई। cos x को अंदर लिया
और अगर cos 3x का फॉर्मूला देखते हो तो कितना होता है, cos 3x इज इक्वल टू कितना होता है बोलो, 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos 3 थीटा का एक्चुअली फॉर्मूला होता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू cos 3x इज इक्वल टू 1। सो cos 3x की वैल्यू कितनी हो गई, 1/2। क्लियर हम पीपल हम, ओके। 1/2 मतलब cos 3x क्या हो जाएगा, cos पाई बाई 3 ना, 60 का वैल्यू होता है ना, पाई/3 है ना, ठीक है। क्लियर है ओके। जनरल सोल्यूशन या अपने जनरल सोल्यूशन क्या होता है, cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा अगर होता है तो थीटा की वैल्यू क्या होती है, 2n+1 इंटू पाई/2 है ना, ये होता है 2n+1 पाई/2। ये आप पढ़ेंगे, आपने नहीं पढ़ा है, इन्होंने पढ़ा है, ठीक है। थीटा इज इक्वल टू n+1 पाई/2, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 3x का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चा परी, 2n+1 इंटू पाई/2 है ना, हाँ क्या मैं भूल गया, 2n पाई, ओके। जैसा मोहतरमा फरमा रही हैं 2n प्लस, तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या होगा भाई साहब, ये मैंने कंफ्यूज हो गया, ठीक है। थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, बहुत बढ़िया भाई साहब, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे 3x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2n पाई प्लस माइनस पाई/3 है ना, 2n पाई प्लस माइनस पाई/3। चलिए अभी हम यहाँ पे इसका मतलब क्या लिख सकते हैं, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 से डिवाइड कर दो, तो 2n पाई/3 प्लस माइनस पाई/9। क्लियर हम पीपल हम, आर वी क्लियर भाई, 3 से डिवाइड किया हमने, ओके। n की वैल्यू 1 डालो भाई साहब, कितनी आ जाएगी, n की वैल्यू 1, तो ये हो गया 2 पाई/3 प्लस पाई/9। ये क्या है भाई साहब, इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द सॉल्यूशंस। अच्छा जी भाई साहब, n की वैल्यू अगर हमने, हमारा यहाँ पे देखो 0 से लेकर पाई तक है, मतलब नेगेटिव वैल्यू नहीं हो सकती है ना, इन 0 पाई इज k पाई, मतलब देखो 0 से लेकर यहाँ पे पाई तक की वैल्यू है, 8 cos x इज k पाई वेयर k इज इक्वल टू, अच्छा जी चलिए, तो यहाँ पे आपका कितना हो गया देखो, 2 पाई/3, x की वैल्यू हो जाएगी भाई साहब 2 पाई/3 प्लस में ले लेते हैं पाई/9 है ना, कितना आ जाएगा ये बोलो, दिस विल बी 7 पाई/9 है ना, ये एक x की वैल्यू हो गई। अगर हमने भाई साहब यहाँ पे माइनस लिया तो कितना हो जाएगा बोलो, लंबा सवाल है यार ये तो, x इज इक्वल टू 2 पाई/3 माइनस पाई/9, सो यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो 9, और यहाँ पे 3 is 9, 2 is 6 पाई माइनस पाई, तो ये हो गया 5 पाई/9, x की एक वैल्यू 5 पाई/9 हो गई, ठीक है। 2 पे आते हैं, देखो एक n की वैल्यू अगर हम भाई साहब, अच्छा 0 भी ले सकते हैं, x की एक वैल्यू हो गई 7 पाई/9, x की एक वैल्यू हो गई 5 पाई/9, ठीक है। अगर हमने n की वैल्यू 0 ली, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, x की वैल्यू हो जाएगी पाई/9, माइनस पाई/9 नहीं हो सकता, नेगेटिव नहीं हो सकता, 0 से लेकर पाई तक है, ठीक है। तो x की एक वैल्यू हो गई भाई साहब पाई/9। चलिए भाई साहब अभी हम आते हैं, x की वैल्यू अगर हम n की वैल्यू हमने 2 ली, तो 0 हमने कंसिडर कर लिया है, 1 भी कंसिडर कर लिया है, अभी हम 2 कंसिडर करें अगर, तो इस पे आते हैं, देखो 2 2 4 पाई, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी होगी बोलो, 4 पाई/3 प्लस पाई/9, सो दैट विल गिव यू हाउ मच, 9, 3 3 9, 4 3 कितना हो गया 12, 13 पाई/9, ये नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि पाई तक ही है लिमिट, देखो, ठीक है। सो 3 ये 2 में आ गया, अगर हम माइनस करते हैं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखो 4 पाई/3 माइनस पाई/9, सो दैट विल गिव यू हाउ मच, 9, 11 पाई/9, दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल, क्योंकि पाई से ज्यादा हो रहा है। तो आपके x की 3 वैल्यूज आ गए, देखो पाई/9, x की कितनी वैल्यूज आ गई, देखो पाई/9, 5 पाई/9 एंड 7 पाई/9, ये 3 वैल्यूज आ गई x की। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है। यहाँ पे क्या पूछा है, देखा इधर सम ऑफ, तो सोल्यूशन क्या हुआ, आपके 3 सोल्यूशंस हो गए। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, देखो सवाल को टेढ़ा करके पूछा गया है, इफ द सम ऑफ ऑल द सोल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन, आपके सोल्यूशन क्या हो गए इक्वेशन के, ये 3 इज इक्वल टू k पाई, समझ में आ रहा है, सम ऑफ ऑल द सोल्यूशंस इज इक्वल टू k पाई, मतलब आपका पाई/9 प्लस 5 पाई/9
प्लस 7 पाई बाई 9, इसकी वैल्यू कितनी है k पाई, ठीक है। तो आपको यहाँ पे k की वैल्यू निकालनी है। कितना हो गया भाई साहब यहाँ पे 7 + 5 12 13, तो ये हो गया 13 पाई बाई 9 इज इक्वल टू k पाई, पाई पाई कैंसिल, k इज इक्वल टू 13 बाई 9, ये हो जाएगा आपका आंसर। आर वी क्लियर ऑन दिस वनम पीपलम, ठीक है। क्लियर है पीपलम, आर वी क्लियर? बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया, सही जा रहे हैं आप लोग एकदम से। PQR इज अ ट्राइंगुलर पार्क विथ PQ और PR भाई साहब आपका 200 मीटर। ट्राइंगुलर पार्क, ट्राइंगुलर पार्क, ट्राइंगुलर पार्क, चलो भाई साहब ये हो गया ट्राइंगुलर पार्क, ये हो गया PQR इज अ ट्राइंगुलर पार्क, ठीक है। तो ये आपका भाई साहब हो गया 200 मीटर्स और ये हो गया आपका भाई साहब 200 मीटर्स, ठीक है। क्लियर है? PQR इज अ ट्राइंगुलर पार्क, PQ इज इक्वल टू PR दैट इज 200 मीटर्स। अ टीवी टावर स्टैंड्स एट द मिड पॉइंट ऑफ QR, तो देयर इज अ टीवी टावर यहाँ पे मिड पॉइंट पे भाई साहब, अ टीवी टावर स्टैंड द मिड पॉइंट ऑफ QR, तो लेट्स से ये M पे आपका टीवी टावर है, ठीक है। टीवी टावर ऐसे है भाई साहब, ऐसे समझ में आ रहा है? ये 3D पिक्चर बना है भाई साहब इसका। 3D पिक्चर मतलब ऐसा हो जाएगा, ये देखो ऐसा है, आपकी तरफ आता हुआ, मुंडी इसकी आपकी तरफ है, समझ में आता हूँ भाई साहब, समझ में आता हूँ, ऐसा है, ऐसा, ठीक है। हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये टीवी टावर हो गया भाई साहब M, और लेट्स से अपन ने इसको टीवी है तो टीवी टावर ये हो गया T, ठीक है। ओके, अ टीवी टावर स्टैंड्स एट द मिड पॉइंट ऑफ QR, मिड पॉइंट ऑफ QR इफ द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर PQR, अच्छा जी, ओ, तो इसका मतलब है यहां से आपने एलिवेशन, समझ में आ रहा है? ये देखो ये ऐसे है और ये ऐसे जा रहा है P की तरफ, ठीक है। दिस इज द टावर एंड दिस इज द पॉइंट P, ये एंगल ऑफ एलिवेशन है, ठीक है। सो दिस एंगल ऑफ एलिवेशन पेपलम, दिस एंगल ऑफ एलिवेशन इज हाउ मच ऑन पेपलम? टेल मी इज 45, समझ में आता हूं भाई साहब? ओके, अभी यही टीवी टावर है, ऐसे ऐसे ये इंक्लाइन 90 डिग्री है इसके साथ, समझ में आ रहा है? ये टीवी टावर भाई साहब Q के साथ कितना एंगल बना रहा है? 30 डिग्री। चलिए भाई साहब विजुअलाइज कर पा रहे हैं इसको? 3D में हम इसको रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे, लेकिन ये है आपका भाई साहब कितना? 30 डिग्रीज, ठीक है। ये 90 डिग्रीज है जमीन से, ठीक है, और ये भी आर मतलब इसके साथ 90 डिग्री है। तो भाई साहब, ओ भाई साहब ये कितना है भाई साहब आपका? 45, 30 और 30। क्लियर हम पीपल? हम क्या ये समझ में आ रहा है? ये मिड पॉइंट पे है ये, ठीक है। ओके, देन द हाइट ऑफ द टावर इन मीटर्स इज हाउ मच? ये आपको हाइट फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो 45, ये 200, ओके जी। हाइट ऑफ द टावर, चलो हाइट ऑफ द टावर लेट से हमने मान लिया भाई साहब h है, ठीक है। लेट हाइट ऑफ टावर बी h, ठीक है। तो आपका भाई साहब यहाँ पे TM की वैल्यू कितनी हो गई? h। सो इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल भाई साहब? PTM, पेरेंट टीचर्स मीटिंग, ठीक है। PTM कितना हो गया भाई साहब आपका? h बाई, देखो इसमें TM बाई PM, समझ में आता हूं? TM बाई PM विल बी इक्वल टू tan 45। आर पीपल एबल टू कॉरेस्ट? भाई साहब ये फिगर को ठीक से समझिए, ये आपका ऐसे है, ऐसे यहाँ पे ऐसे है, तो ऐसे जा रहा है, ये देखो T, समझ में आ रहा है? ये TM है और ये है भाई साहब आपका TM बाई PM, समझ में आ रहा है ये, ठीक है। दैट इज इक्वल टू tan 45। तो TM की वैल्यू है h, PM की वैल्यू आपको नहीं मालूम, ये है tan 45, तो ये हो गया 1। तो PM की वैल्यू कितनी हो गई बच्चा बाड़ी? h। समझ में आता भाई साहब? तो आप इसको लिखते जाइए, ये वाला हो गया बच्चा पार्टी h। आर वी क्लियर अमंग दिस वन पीपल हम, ठीक है। ओके, चलो नाउ लेट्स कम टू दिस वन, ठीक है। इन ट्राइंगल TQM, इन ट्राइंगल TQM, ध्यान से देखो, ये भी भाई साहब ऐसे ही है, ऐसे है, देखो ऐसे, ये 30 डिग्री ऐसे जा रहा है, ठीक है। सो आपका यहां पे क्या लिख सकते हैं बोलो? TM बाई QM, TM बाई QM इज इक्वल टू हाउ मच हम पीपल? हम TM बाई QM इज इक्वल टू tan ऑफ 30, tan ऑफ 30, ठीक है। TM है आपका h, QM नहीं मालूम, इज इक्वल टू tan ऑफ 30 दैट इज 1 बाई √3। आर बी क्लियर? क्लियर, एवरीबडी इज क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम
तो QM की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बोलो ना बोलो, h√3। तो ये हो गया भाई साहब आपका कितना, h√3। दिस विल बी h√3। ठीक है, क्लियर है? ओके, नाउ लेट्स कम टू दिस ट्राइंगल। कौन सा भाई साहब? सो यहां पे आते हैं हम, देयरफॉर इन ट्राइंगल कौन सा, PQM, इन ट्राइंगल PQM, यहां पे आपका क्या बोल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से, PQ स्क्वायर इज इक्वल टू PM स्क्वायर प्लस QM का स्क्वायर। ठीक है, PQ स्क्वायर इज इक्वल टू PM स्क्वायर प्लस QM का स्क्वायर। PQ स्क्वायर कितना है, 200 का स्क्वायर, PM का स्क्वायर कितना है, H का स्क्वायर, प्लस QM का स्क्वायर कितना है, h/√3 का स्क्वायर। तो ये हो गया h स्क्वायर प्लस h स्क्वायर बाई 3, ये हो गया आपका 200 का स्क्वायर। सो ये हो गया कितना भाई साहब आपका, क्या बोल रहे हो, हाँ सॉरी, आई एम सो सॉरी, ये हो जाएगा भाई साहब आपका 3h स्क्वायर, 3h का स्क्वायर। ओके, सो दैट विल बी 4h स्क्वायर इज इक्वल टू 4, 1 2 3 4। ठीक है, सो देयरफॉर h का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 40,000 अपॉन 4, सो दैट विल बी 10,000। ठीक है, तो h की वैल्यू हो जाएगी √10⁴, दैट इज 10⁻²। मीटर्स में है ना सब, 100 मीटर्स, सो दिस विल बी 100 मीटर्स। क्लियर पीपलम, आर वी गेटिंग दिस पीपलम? ठीक है, सो दिस विल बी 100 मीटर वा, आर वी क्लियर? ठीक है, ओके, वी विल स्टार्ट विथ फिजिक्स सम।